Good morning and Jai Hind everyone. Welcome to Geography class. So dear students, after half yearly, today I will start a new chapter named Manufacturing Industries. So it is my humble request to all my students, please open chapter number 7, Manufacturing Industries, and please be with me for next 30 minutes and be attentive. So let's start chapter number 7, Geography, Manufacturing Industries. So dear students, in manufacturing industries, we will discuss many topics. So, so many products from our primary activities such as mining and agriculture cannot be utilized without processing. बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज से हमको मिलते हैं लाइक माइनिंग एंड एग्रीकल्चर, उनको डायरेक्ट हम यूटिलाइज नहीं कर सकते. वी हैव टू प्रोसेस देम, उनको प्रोसेस करना होगा. दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू यूजेबल प्रोडक्ट्स. तो द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स into finished products such as cotton into cloth, sugarcane into sugar, wood pulp into paper, and mineral oil into petrochemicals called manufacturing. तो जो हम रॉ मटेरियल्स का प्रोसेस करते हैं और उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कॉटन से क्लॉथ, सुगर कैन से सुगर, वुड पल्प से पेपर एंड मिनरल ऑयल से पेट्रोकेमिकल्स, एंड दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. So the processing is done with the help of machines and suitable technology. और ये प्रोसेसिंग हम कैसे करते हैं? मशीन के हेल्प से एंड सुटेबल टेक्नोलॉजी के हेल्प से. Clear students? So I am just repeating one more time. The processing of raw materials into finished goods or finished products called manufacturing. Clear? Okay. Now, the industrial revolution. देखो, industrial revolution, it was started in 18th century in Great Britain and later spread to Western Europe. ये ग्रेट ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इट इज ए रेवोल्यूशन वेयर इंडस्ट्रीज वर सेटअप ऑन लार्ज स्केल. तो सबसे पहले इट स्टार्टेड इन ग्रेट ब्रिटेन एंड इसके बाद ये वेस्टर्न यूरोप में स्प्रेड किया. It resulted in the growth and development of the modern factories. इसकी वजह से क्या हुआ? मॉडर्न फैक्ट्रीज का ग्रोथ हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ. दिस रेवोल्यूशन established a new relationship between human beings, machines and natural resources. इस रेवोल्यूशन का क्या फायदा हुआ? इस रेवोल्यूशन का फायदा हुआ कि इसने एक नया रिलेशनशिप बनाया. किसके बीच में? ह्यूमन बीइंग्स, मशीन्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज. क्लियर? ओके. आफ्टर दैट, manufacturing is closely related to other occupations since it depends on them for raw materials, food for workers and market for finished goods. ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये क्लोजली रिलेटेड है दूसरे ऑक्यूपेशंस के साथ. व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन देम.
किस चीज के लिए डिपेंड है उन पर? रॉ मटेरियल्स के लिए, फूड फॉर वर्कर्स के लिए एंड मार्केट फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए. And manufacturing also helps to remove poverty and unemployment. मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये पावर्टी, ये गरीबी हटा सकता है, ये पावर्टी को रिमूव करता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. सो मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Thus, the position of developed nations as world powers depends to a large extent on the development of its manufacturing sector. We talk about developed nations, we talked about rich countries, or we talk about world powers. उनका पोजीशन किस पे डिपेंड करता है? तो a large extent on development of its manufacturing sector. जिस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना डेवलप होगा वो देश उतना ही रिच होगा, उतना ही पावरफुल होगा. Clear? So the position of developed nations as world powers depends to a large extent on the development of its manufacturing sector. After that, any economic activity which is associated with the production of goods is called an industry. What is industry? Any economic activity which is associated with the production of goods. कोई भी economic activity जो कि goods के production से associated है, that is an industry. The extraction of minerals, production of goods or provision of services are also called industries. चाहे extraction of minerals है, चाहे production of goods है या services के provisions हैं, they are also called industries. So we have a variety of industries. हमारे पास कई तरह के industries हैं. Textiles like manufacturing, mining, extraction of minerals, and tourism, service provider. So we have a variety of industries. हमारे पास अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज हैं. मैन्युफैक्चरिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड सर्विस प्रोवाइडर. तो नाउ industries are classified. So several factors like availability of raw materials, sources of power, water supply, availability of skilled laborers, capital investment, market for manufactured goods, transport facilities, and ownership determine the location, development, and growth of manufacturing industries. कई सारे फैक्टर्स हैं. कौन कौन से फैक्टर्स? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, सोर्सेज ऑफ पावर, वाटर सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबरर्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड ओनरशिप. ये सब मिलकर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का लोकेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को डिटरमाइन करता है. So industries can be classified into several groups. तो इसके बेस पर इंडस्ट्रीज को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड किया जा सकता है. So listen it carefully. If we have to classify industries on the basis of raw materials, मतलब अगर रॉ मटेरियल्स के बेस पर इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाए तो लुक कितने काइंड्स में वो क्लासिफाई होंगे. सो द फर्स्ट वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स हम लोग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर रहे हैं.
तो द फर्स्ट वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. नाम से ही क्लियर है ना, एग्रो बेस्ड. एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, दैट इज फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको अपना रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? एग्रीकल्चर से. इसीलिए इसको बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. क्लियर? कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं? तो कॉटन, टेक्सटाइल्स, जूट टेक्सटाइल्स, सिल्क टेक्सटाइल्स, vegetable oil, sugar and food processing. They are agro-based industries. Cotton textile, jute textile, silk textiles, vegetable oil, sugar and food processing. इनको अपना raw material कहां से मिलता है? They get their raw material or they obtain their raw materials from agriculture. That's why they are known as agro-based industries. इसको याद रखना. Agro-based means industries which are based or dependent on agriculture. Clear? Okay. Now the next one is mineral based industries. Clear हो रहा है ना? Industries which are based on minerals, they are known as mineral based industries. So mineral based industries obtain raw materials from rocks and minerals. ये जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना, इनको अपना रॉ मटेरियल्स कहां से मिलता है? रॉक्स एंड मिनरल्स से. इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम एंड सीमेंट आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. सो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो अपने रॉ मटेरियल के लिए रॉक्स एंड मिनरल्स पे डिपेंडेंट हैं. एग्जाम्पल्स मैंने बताया, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज. दे आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट इज पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. तो पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज गेट दियर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एनिमल्स. ये जो पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है इनको अपना रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? दे गेट दियर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम animals. Animals like sheep, goats and cows. They use hides, skins, bones, horns, flesh and milk. Even woolen textiles, leather goods and dairy products are pastoral based industries. ठीक है ना? चाहे वो वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, लेदर इंडस्ट्री हो या डेयरी प्रोडक्ट्स हो, ये अपने रॉ मटेरियल के लिए किस पे डिपेंडेंट हैं? तो दे आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड दिस इज पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. नाउ द नेक्स्ट वन इज marine based industries. What is it? So marine based industries obtain raw materials from seas and oceans. ये जो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको अपना रॉ मटेरियल्स कहां से मिलता है? सीज एंड ओशंस से. और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? तो प्रोसेसिंग ऑफ सी फूड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिश ऑयल. They are the example of marine based industries. इन इंडस्ट्रीज को अपना रॉ मटेरियल सीज एंड ओशन से मिलता है. क्लियर? ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. ये भी बहुत क्लियर है. इंडस्ट्रीज जिनको अपना रॉ मटेरियल्स कहां से मिलता है? फॉरेस्ट से. सो forest based industries obtain raw materials from plants such as trees, bushes and grasses. और वो इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं? सो दे आर पेपर, कार्डबोर्ड, रेयन, लैक, रेसिन एंड फर्नीचर. ये सारे इंडस्ट्रीज जो हैं दे आर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्योंकि इनको अपने रॉ मटेरियल के लिए फॉरेस्ट से पे डिपेंडेंट होना होता है. क्लियर? ओके.
नाउ द नेक्स्ट इज, सो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इंडस्ट्री की साइज क्या है उसके बेसिस पर भी इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड है. सो द साइज ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन, अब साइज का क्या मतलब है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, उसमें कितना कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कितने सारे लेबरर्स एम्प्लॉयड हैं, और कितना गुड्स प्रोड्यूस होता है, उसके बेस पर भी इंडस्ट्रीज क्लासिफाई हुए हैं. सो द फर्स्ट वन इज कॉटेज इंडस्ट्रीज. व्हाट इज द फर्स्ट वन? दैट इज कॉटेज इंडस्ट्रीज. सो कॉटेज इंडस्ट्रीज यूटिलाइज लोकल रॉ मटेरियल्स एंड बेसिक टूल्स एंड इक्विपमेंट. ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो लोकल रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, बेसिक टूल्स यूज करते हैं, बेसिक इक्विपमेंट्स यूज करते हैं. और ज्यादातर जो ये इंडस्ट्रीज हैं दे आर फाउंड इन रूरल एरियाज. और जो प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं वो दे आर फॉर सेल इन लोकल मार्केट्स. वो जो चीज भी बनाते हैं वो कहां पे सेल कर देते हैं? लोकल मार्केट्स में. लेबर की क्या कंडीशन है? तो लेबर इज सप्लाइड बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. इसमें जो लेबर होते हैं वो फैमिली के मेंबर्स ही होते हैं. फार्मर्स एंड क्राफ्ट्समैन इन देयर फ्री टाइम मेक गुड्स लाइक रोप्स, बास्केट्स, हैंडलूम क्लॉथ्स एंड लेदर आइटम्स. चाहे फार्मर्स हो चाहे क्राफ्ट्समैन हो, उनका जो फ्री टाइम होता है उसमें वो बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, रोप्स, बास्केट्स, हैंडलूम क्लॉथ्स एंड लेदर आइटम्स. सो इट वाज कॉटेज इंडस्ट्री. और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू कॉटेज इंडस्ट्री. एंड द नेक्स्ट वन इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं दे यूज पावर ड्राइवन मशीन्स. मशीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना, दे यूज पावर ड्राइवन मशीन, इलेक्ट्रिसिटी से या मिनरल ऑयल से. रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड एंड गुड्स आर सोल्ड थ्रू ट्रेडर्स. रॉ मटेरियल्स वो बाहर से मंगाते हैं, जो उनके गुड्स हैं वो कौन सेल करता है? वो ट्रेडर्स सेल करते हैं, उनके थ्रू सेल होता है. They are generally owned by an individual and employ a small number of laborers. ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये जनरली कौन ओन करता है? एक इंडिविजुअल ओन करता है, उसका मालिक कोई एक होता है और स्मॉल नंबर ऑफ लेबरर्स को वो एम्प्लॉय रखता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग कंट्रीज. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में. वो क्लॉथ प्रोड्यूस करता है, पेपर गुड्स, टॉयज, फर्नीचर, मशीन पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, यूटेंसिल्स एंड लेदर गुड्स. These are the examples of small scale industries. Clear? Now the next one is large scale industries. So dear students, large scale industries use heavy power driven machines. जो ड्राइवन मशीन से वो बहुत हैवी होते हैं. यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, हजारों लेबर इसमें काम करते हैं, और जो मैनेजमेंट सिस्टम है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. दे ब्रिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस. बहुत दूर दूर से वो रॉ मटेरियल्स लाते हैं और अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को वो बहुत दूर सेल करते हैं. एग्जांपल्स है आयरन एंड स्टील मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एंड पेट्रोकेमिकल्स. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के जो एग्जांपल हैं दे आर आयरन एंड स्टील मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एंड पेट्रोकेमिकल्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज industries are classified into cottage industries, small scale industries and large scale industries. Now on the basis of ownership,
हु इज द ओनर, मालिक कौन है, उसके बेसिस पे इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। क्या है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज? तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है उसका ओनर कौन होता है या किससे कौन मैनेज करता है? तो या तो कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एंड एग्जांपल्स आर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, Tata Steel and Hindustan Motors, and there are many. They are the examples of private sector. So who is the owner? Any individual or group of individuals. Clear? Okay. Now the next one is public sector industries. We are discussing classification of industries on the basis of ownership. So the next one is public sector industries, dear students. So public sector industries are owned and managed by the central or state governments or their agencies. पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज हैं दे आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय, वो उसको ओन्ड या मैनेज कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज। एंड एग्जांपल्स आर भिलाई स्टील प्लांट्स एंड भारत heavy electricals limited, and there are many more. These are the examples of public sector industries. Who is the owner? Government, state government, central government or government agency. Next one is joint sector industries. What happens in this? So joint sector industries are owned and managed jointly by private firms एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। ये जो ज्वाइंट सेक्टर है इसको प्राइवेट फर्म्स और गवर्नमेंट एजेंसीज दोनों मिलकर मैनेज करते हैं और ओन करते हैं। एग्जांपल्स है गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। These are the examples of joint sector industries. Who is the owner? So private firms and government agencies both. The next one is cooperative sector industries. Dear students, cooperative sector industries are owned and managed by a group of people. इसका जो ओनर होते हैं या जो मैनेज करने वाले लोग होते हैं दे आर द ग्रुप ऑफ पीपल. Generally the members are the producers of raw materials. जो मेंबर्स हैं दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वो रॉ मटेरियल्स के प्रोड्यूसर्स होते हैं. सो हैंडलूम, फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, दे आर एग्जांपल्स ऑफ सच इंडस्ट्रीज. हैंडलूम है, फूड प्रोसेसिंग है, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज अमूल. यू आर वेरी फैमिलियर विद दिस कंपनी अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया. So Amul is an example of cooperative sector industries. So dear students, on the basis of ownership, industries are classified into private sector industries, public sector industries, joint sector industries and cooperative sector industries. There is multinational corporations. Dear students, multinational corporations are set up. Multinational corporations को हम MNCs भी कहते हैं. So multinational corporations are set up in collaboration with foreign investors. ये जो फॉरेन की कंपनीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट, उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं. And such industries are owned and managed by members of two or more countries. इसका ओनर कौन होता है या कौन मैनेज करता है? तो द मेंबर्स ऑफ टू कंट्रीज, टू और मोर कंट्रीज. एग्जांपल्स आर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड. मारुति is from one country and Suzuki is from other country. So Maruti Suzuki India Limited or the Coca-Cola company. These are the examples of multinational corporations.
So dear students, this was all about today's chapter, and mainly what we have discussed today. So mainly we have discussed that what is industry, what is manufacturing, and especially how industries are classified. So industries are classified on different basis, on the basis of size, on the basis of ownership, and on the basis of raw materials. So dear students, that's all for today's. It is my humble request to all my students, please read all the topics carefully. And in next class, we will discuss some other topics of the same chapter. Till then, thank you and have a nice day.